कर्मों की थ्योरी ये है, जो कर्म जितना स्लो गति से किया जाता है उसका फल उतने ही लंबे टाइम के बाद मिलता है, और जो कर्म बड़ी तीव्र गति से किया जाता है उसका जो प्रतिफल है वो बहुत जल्दी मिल जाता है। तो कोई कर्म ऐसे हैं जिनका उसी जन्म में फल मिल जाता है। जैसे कोई आदमी बहुत हत्याएं करता है, डकैती डालता है, तो उसी जन्म में पकड़ा जाता है और उसको उसी जन्म में फांसी भी दे दी जाती है। फिर भी कभी मनुष्यों के द्वारा किए हुए फैसले से उसका प्रतिकार पूरा नहीं होता है तो फिर अगले जन्म में ऐड कर दिया जाता है। The student's question was that why is it so that when we perform bad actions, we should be punished at the same time? Why is it so that we are punished in the next birth? Because if we receive punishments at the same time, as soon as we perform some wrong deed, then we won't perform it for the next time. So why is it so that the bad deeds, they bring results in the next birth? Now by saying such question, it is those people who don't know the theory of actions who ask this question. The actual theory of actions is such that the action which you perform at a fast pace bears fruit very soon. Immediately you will get the fruits for it. And the slower the pace is of performing actions, the fruits for those actions you receive it later on. You can also receive it in the next birth. Like Baba gave an example. There is a person who is a murderer. He has murdered many people, or he has stolen many things. He has done a lot of robbery. So when it becomes extreme, then he gets the result in the same birth, like he is caught and he is hanged to death. So Baba is saying the actions which are performed at a fast pace bring results in the same birth. And if at all the judgment made by the human beings is not proper, if it is not sufficient enough, then he may also receive the punishments in the next birth. மறுபிறவியில புதுசா பிறவி எடுத்திருக்கோம், எந்த பாவமும் செய்யல, ஆனா ஏன் தண்டனை அனுபவிக்கணும்னு தெரியாம தண்டனை அனுபவிக்கணும்னு ரொம்ப கஷ்டமா இருக்கு। जब अगला जन्म में हम सजा लेते हैं, हमको पता नहीं है किस जन्म का सजा होता है। हाँ जी। तो इसके लिए दुख ज्यादा होता है। हाँ है, पता चलने से अच्छा होता है। सजा हम जो मिलती है ये तो जानते हैं कि हमने दुष्कर्म किया है? कोई व्यक्ति राजघराने में पैदा होता है या बड़े साहूकार के यहाँ पैदा होता है, सारा जीवन कुछ कर्म नहीं करता और बड़े आराम से पलता है, तो उसे समझ लेना चाहिए कि हमने पूर्व जन्म में अच्छा काम किया है जिसकी वजह से हमको अच्छा जन्म मिल गया और हम पूर्व जन्म की कमाई इस जन्म में खा रहे हैं। इसके उल्टा भी हो सकता है, यही राज है। The student is saying that because when you receive the punishments in the next birth, you are not aware when you performed the wrong deeds. You don't know which wrong deed I performed and I'm receiving punishments for that. So this is why we feel even more sorrowful. Baba is saying, but you are at least aware of this much, that you have performed wrong deeds. Like Baba gave an example, if a person is born in the house of a king or a very rich man, and if he doesn't work in his whole life, he is just brought up in comfort. So that person should realize this fact that he has performed good actions in his previous birth. This is why he is receiving the result or the fruit in this birth. It can also be the opposite way. ஏணிப்படியில நம்ம ஏன் இறங்கணும்? நம்ம சத்தியுகம் சங்கமேகம் அப்படியே இருக்க வேண்டியதானே, அதே ரெண்டா இருக்கலாமே, ஏன் ஏணிப்படியில கலியுகம் வரைக்கும் போகணும், கஷ்டப்படணும் அப்படி கேட்கிறோம்। क्यों सीढ़ी में हम उतरते हैं? सत्युग और संगम युग काफी है। हाँ। क्यों सीढ़ी में उतरना चाहिए? हाँ। उतरते उतरते ऐसी स्टेज भी तो आ सकती है जिसमें रात आ जाए। रात और दिन दोनों होते हैं तभी ड्रामा बनता है कि बिना रात और दिन के ड्रामा बन जाएगा? ये हो सकता है
कि रात बहुत थोड़ी हो और दिन 24 घंटे का हो। अप एंड डाउन में आए बगैर आत्माओं की पावर का कैसे पता चलेगा? आत्माओं के नंबर का कैसे पता चलेगा? कौन सी आत्मा इस सृष्टि पर पहले आना चाहिए और कौन सी आत्मा इस सृष्टि पर अंत में आना चाहिए, पता कैसे चलेगा? पार्ट बजाएंगी तभी ना, कि बिना पार्ट बजाए? इसलिए अप एंड डाउन में आना जरूरी है। हर आत्मा को अप और हर आत्मा को डाउन, किसी को कम किसी को ज्यादा, किसी को ज्यादा अप तो ज्यादा डाउन, किसी को ज्यादा अप नहीं है, थोड़े से थोड़ा अप में आता है और थोड़े से थोड़ा डाउन में जाएगा। थोड़ा दुखी होगा, थोड़ा सुखी होगा। तभी तो ड्रामा अच्छा लगता है। सुख और दुख साथ साथ है, रात और दिन साथ साथ है। और Student's question was, there should be only the confluence age and the golden age. What is the necessity for all the other ages? Baba is saying this is a drama. A drama looks good only when there is up and down. There should be night as well as day. Baba is saying yes, this is possible that there can be day for a long time and night for a very short period. But there has to be night and day, because if there is no up and down, then how will you come to know about the power of a soul? How powerful a particular soul is? If there is no up and down, you won't come to know what the number or what the rank of a particular soul is. Baba is saying this is why up and down, every soul goes up and every soul comes down. Yes, it is possible that some soul rises very high, so he'll also fall a lot. And there is some soul who rises a little, so he'll fall a little. But there should be happiness and sorrow. Baba is saying day and night, happiness and sorrow, they work together. இன்னொரு கேள்வி பாபா, அப்படி இது வந்து டிராமா அப்படின்னு சொன்னா, இந்த டிராமா வந்து இந்த பிளான் வந்து யாருடையது? யார் இந்த டிராமாவை நிர்ணயிக்கிறது? ड्रामा उंगले विட शक्तिवाना? ये सब ड्रामा होता तो ड्रामा किसका है बाबा? है ये सब ड्रामा है तो ड्रामा किसका प्लान है? ड्रामा आपसे सर्वशक्तिवान है बाबा, सर्वशक्तिवान। बाबा ने बोला है सबसे ज्यादा ड्रामा क्रिएट करने वाला किसका नाम बताया? इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर सबसे ज्यादा ड्रामा कौन बनाता है? सबसे ज्यादा ड्रामाबाजी बनाता है व्यास। बी माने विशेष, आस माने बैठ जाता है। संगम युग में भी बैठ जाता है, सतयुग त्रेता में तो आत्मिक स्थिति में रहता ही है, द्वापर कलयुग में भी आत्मिक स्थिति में रह करके सबसे जास्ती ड्रामा बनाता है। ड्रामा बाजी बनाने में वो हीरो है, जिसको कहते हैं मैन एक्टर। अपने लिए बनाता है, दूसरों के लिए नहीं। जो सबसे जास्ती ड्रामा बनाता है तो 500-700 करोड़ उसी के आसपास घूमते रहते हैं। जैसे ध्रुव तारा, ध्रुव तारा अपनी जगह पे स्थिर है, सारे आसमान के सितारे रूपी आत्माएं उसके चारों तरफ घूम रहे हैं। यही बड़ा ड्रामा है। शिव बाबा कहते हैं मैं ड्रामा के बंधन में बांधा हुआ हूं। व्यास कहता है मैं भी अपने बनाए हुए ड्रामा के बंधन में बंध गया हूं। जैसे मकड़ी खुद ही जाला बनाती है और खुद ही उसमें
फंस जाती है। ऐसे ही है, हर आत्मा अपने लिए सतयुग और त्रेता में, द्वापर और कलयुग में ड्रामा बनाती है। संगम युग में रिहर्सल करती है, संगम युग में शूटिंग करती है, रिकॉर्डिंग करती है, और 5000 वर्ष वो ड्रामा चलता रहता है। दूसरों के लिए कोई ड्रामा क्रिएट नहीं करता, हर आत्मा अपने लिए ही अपना ड्रामा क्रिएट कर रही है। और The student is asking about drama, that if there is a drama, like Baba said, no? This is like a drama at night. So the student is asking, if it is a drama, then this drama is planned by whom? Is this drama powerful than even Shiv Baba? So for that Baba is replying that in the Murlis it is asked, who creates drama a lot? So Baba has named him Vyas. It is Vyas who creates drama a lot. Then Baba is explaining the meaning of Vyas. V means Vishesh, that is in a special way, and As means to sit, the one who sits in a special way. So Baba is saying he sits in the confluence age and creates drama, and he is anyway in the soul conscious stage in the golden and silver ages, and also in the copper and iron ages he sits in the soul conscious stage and he creates the drama. And the drama which he creates it for himself. He is like the main actor of the drama, so he creates the drama for himself. And Baba is saying he is like the main actor, and all the 5 to 7 billion actors, all the actor-like souls, they go around that main actor. Like Baba gave the example of the pole star. There's the pole star in the center, it is fixed, and all the star-like souls keep revolving around the pole star. Then Baba is saying that that main actor, he creates the drama himself, and he himself plays a part in that drama. Just like Baba gave the example of a spider. The spider, it builds a cobweb, and then it gets stuck in the cobweb himself. So similarly, it is the same case with all of us souls. All of us souls are creating drama for ourselves, and then we get trapped in it. So we are creating drama for ourselves, we don't create drama for someone else. So this is called the drama, the world drama. பாபா இது ஒண்ணுதான் என்னோட கேள்வி. பாபா அடுத்த 5000 வருஷமும் எனக்கு உங்களோட சர்வ சம்பந்தம் வேணும். அதுக்காக இப்ப இந்த சங்கமத்துல நான் என்ன புருஷார்த்தம் செய்யணும்? बाबा ये मेरा प्रश्न है, माता जी का बोलने का ये मेरा प्रश्न, माता जी का प्रश्न है, आने वाला 5000 वर्ष में पूरा बाबा का साथ सर्व संबंध निभाना है, इसके लिए आने वाले 5000 वर्ष में पूरा ड्रामा में बाबा का साथी उन्हें सर्व संबंध जोड़ना है, इसके लिए कैसे पुरुषार्थ? यहाँ नहीं जोड़ना है, सवाल यह है यहाँ जोड़ेंगे तभी तो वहां जोड़ेंगे, यहाँ नहीं सर्व संबंध जोड़ेंगे बाबा के साथ तो वहां कैसे जोड़ेंगे? क्या पुरुषार्थ करना, उसके लिए क्या पुरुषार्थ, कैसे पुरुषार्थ? जितना गुड़ डालेंगे उतना मीठा होगा, जितना तन की पावर लगाएंगे, जितने धन की पावर लगाएंगे, जितनी मन की पावर लगाएंगे, जितनी वाचा की पावर लगाएंगे, जितनी दृष्टि की पावर लगाएंगे, आत्मिक स्थिति में रह करके जितना वाइब्रेशन बनाएंगे उसकी पावर लगाएंगे ईश्वरीय कार्य में, उतना ही प्राप्ति होगी। सौ % तन मन धन वाचा हर प्रकार से लगाएंगे तो 100% प्राप्ति हो जाएगी। The student is asking, what kind of purusharth should we make so that we establish all kinds of relationships only with Baba in the next 5000 years? Baba is saying that is possible only when you establish all kinds of relationships in the confluence age, because whatever you do in the confluence age will be in the broad drama. So then the student is asking, what kind of purusharth should we make for this? So Baba is saying the more jaggery you add to something, the sweeter it becomes. So Baba gave the example of the body,
wealth, mind, and the power of speech, and the power of the vision, and the power of vibrations. The more you invest all this in the divine service, the more attainments you will receive. If you invest everything 100%, you will receive 100% attainments. बाबा, जैसे भी ड्रामा के विषय में भी आया कि ड्रामा क्रिएट करते हैं, हर आत्मा अपने लिए ड्रामा क्रिएट करती है, तो इसमें कर्म की थ्योरी भी आती है ना बाबा? इसमें कर्म की थ्योरी भी तो आती है ना, जिसे दुर्गति और सदगति कहा जाए। हाँ। तो इसका संबंध कैसे? माने हम अभी संगम युग में कर्म अकर्म विकर्म नहीं कर रहे हैं, तो कर रहे हैं, तो उसका रिजल्ट आएगा। मिटा भी तो रहे हैं, जो मिटाना है वो मिटा भी तो रहे हैं बाबा। मिटा भी रहे हैं, बना भी तो रहे हैं, 100 गुना चढ़ा भी तो रहे हैं। दुनिया में जो कर्म करते थे 63 जन्म 62 जन्म, जो भी कर्म करते थे उसका 1 गुना पाप चढ़ता था। अभी संगम में 100 गुना पाप चढ़ता है। तो हम देखना है कि विकर्म जास्ती कर रहे हैं या सुकर्म जास्ती कर रहे हैं। The student's question was that when Baba is saying that it is a drama, then in the drama there is the theory of actions also, that is also included in the drama. So how is it? Baba is saying that why in the confluence age don't we know about actions, neutral actions and wrong actions? We are performing actions, neutral actions as well as wrong actions. So they will bring results. So then Baba is saying like if you perform wrong actions in the 63 or 62 births in the world, then you get just one time punishment for it. But after coming in the confluence age, if you perform a bad deed, then you get 100 times punishment for that. So the student is saying we are also trying to burn our sinful actions. Baba is saying yes, you are burning your sinful actions and you are also performing more sinful actions. बाबा, जैसे ये ना मुरली में कहा, बाबा ने कहा कि जब तक जीना है पीना है, लेकिन फिर बाबा ये भी कहते हैं कि जैसे 2018 से 36 तक का जो पीरियड है और 2018 से बाबा गुप्त हो जाएंगे, मतलब महाशिवरात्रि के बाद, और याद का अन्न भी नहीं मिलेगा। याद का अन्न भी नहीं मिलेगा। अंत अन्न खुराक, याद की खुराक नहीं मिलेगी। हाँ, माने स्थूल अन्न भी नहीं मिलेगा। हाँ, इतना अकाल पड़ेगा जो स्थूल अन्न का दाना भी नहीं मिलेगा। और जैसे ऑटोमेटिक भट्टी चलना है और ज्ञान का सब्जेक्ट समाप्त होना है, उसका मतलब क्या हुआ बाबा? बाबा जहाँ कहीं भी रहेगा, हमारी अव्यक्त स्टेज के आधार पर हम बाबा को साथ अनुभव करेंगे। मुरली अभी जो अव्यक्त स्टेज बनाएंगे वो वहाँ उस काल में बाबा के प्रत्यक्ष होने के बाद वो स्टेज हमारी काम में नहीं आएगी। अभी देवान की स्टेज में रहेंगे ज्यादा तो अंतमते सुगति हो जाएगी। हाँ, लेकिन बाबा मुरली तो अंत तक चलेगी ना? मुरली हमारे अंदर नहीं चलती है क्या? हर आत्मा के अंदर मुरली चलती है कि नहीं? थोड़ी बहुत चलती है एडवांस वालों के अंदर। तो किसी के अंदर लगातार चलेगी, किसी के अंदर थोड़ी चलेगी। प्रैक्टिस की बात है। जितनी जो प्रैक्टिस करे, अव्यक्त रहने की प्रैक्टिस करनी है। व्यक्त माने जो आंखों से दिखाई दे उसमें रमण करना, अव्यक्त माने जो आंखों से दिखाई नहीं देता उन बातों में रमण करना। स्वर्ग इन आंखों से दिखाई नहीं देता, स्वर्ग की दुनिया में हम मनन चिंतन मंथन से रमण करते रहे। ज्ञान में रमण करते रहे।
एक्यूरेट बिंदु की याद में साकार में निराकार को देखते रहे, वो भी पूरी अव्यक्त स्टेज है। ऐसे नहीं है कि साकार सबको हर समय याद आता रहता है। बहुत कहते हैं हमको याद ही नहीं आता साकार, प्रयास करते हैं तो भी चेहरा याद नहीं आता। अब साकार ज्यादा से ज्यादा समय अव्यक्त स्टेज में रहता है, मनन चिंतन मंथन में रहता है, नई दुनिया की प्लानिंग करने में स्थिर रहता है, आत्मिक स्टेज में स्थिर रहता है, बाप की याद में स्थिर रहता है। तो जो अव्यक्त है उसको अव्यक्त आंख से ही देखा जा सकता है ना। अव्यक्त आंख जिसने बनाई है वो देखेगा। वो देह का सुख लेने में ही जो व्यस्त है उसको कैसे दिखाई पड़ेगा। देह का सुख भी लेना है तो भी बाबा कहते याद में लो, बाबा की याद में रह के भोजन खाओ, बाबा की याद में रह करके भोग भोगो इंद्रियों के। वो भी तो प्रैक्टिस करनी पड़ेगी ना। और Student's question was like, Baba has said in the Murli that as long as you live, you have to drink the nectar of knowledge. And then on the other side, Baba has also said that when there is Mahashivratri after the Father's revelation, you won't get physical food and you won't even get the food of remembrance. So what does that mean? Baba is saying yes, you won't even get the physical food, the 4 grains, and there will be a shortage of the food of remembrance also. But then she is saying that, then it is also said that there will be the automatic bhakti. What does that mean? So Baba is saying the more you practice to be in the avyakt or subtle stage now, won't it bring results when the revelation takes place? Like when there is the time when you won't even receive food grains, then our practice made at present, the practice of the subtle stage, avyakt stage will bring fruits at that time. Baba is saying that the more the subtle you remain now, the more you'll be able to see the subtle one. But if you are in the physical state, then you won't be able to remember the subtle one. Baba is saying that being in the avyakt stage means, avyakt means that which is not visible to these eyes, like there is heaven, to think and churn about heaven, or to think and churn about knowledge, to be in the accurate remembrance of Shiv Baba. And what is the accurate remembrance? To remember the incorporeal one within the corporeal one. So that is also the, so if you are in this kind of a stage, then you are in the avyakt stage. So if you practice to be in the avyakt stage now, that will bring results in future also. And Baba is saying that those who are busy in taking the pleasures of the body, they won't be able to see the subtle one. They won't be able to make the avyakt stage. But even if you want to experience the pleasure of the body, then you should be in Baba's remembrance. Like Baba has given an example, if you eat food, you should be in Baba's remembrance. बाबा एक साकार मोदी में बात आई थी, भरिये का भरिया बन जाते हैं। भरिये का भरिया बन जाते हैं, इसका अर्थ क्या है बाबा? एक युग की बात है, द्वापर युग। क्या पूरा वाक्य बोलिए बाबा का, आगे पीछे का भी कुछ बोलिए। हाँ, इसमें आपने हो सकता है बाबा ने बोला हो चरिये के छरिये ही बन जाते हैं, हाँ, आपने उसे पढ़ लिया हो भरिये के भरिये बन जाते हैं। इसका अर्थ चरिया बने पागल, कभी बुद्धि इधर विचरण करती है, कभी उधर विचरण करती है, कभी ये बात कभी वो बात, उसे पागल कहा जाता है। और भरिया आपने गलत पढ़ लिया तो इसके लिए क्या कहा जाए? या तो पूरा वाक्य बताइए। अच्छा ठीक है, मैंने सिर्फ यही नोट किया था बाबा। हाँ। और अगली बात है, यहाँ पर बात आई थी, मम्मा बाबा की तख्त नशीन भी बनना चाहते हो तो उनके चलन मुजीब चलो। हाँ, ये मुजीब चलो, उनके बराबर, उनके बराबर, उनकी तरह। मुजीब माने उनकी तरह। The student is asking some word from the Sakar Murli. Actually, she misread it. So Baba is saying the word is not bhariya but charya. Charya means mad. Like sometimes the intellect goes here, sometimes it goes there, sometimes it goes somewhere else. The intellect keeps wandering. That is called being mad. And then she is saying that there is a word mujib in the Murli, that if you want to become entitled to Mama Baba's throne, you should be like them, like you should follow them. So what is the meaning of mujib? Mujib, Baba is saying mujib means being alike, being like them.
like being like Mama Baba. और विहंग मार्ग की सर्विस के बारे में बाबा बताया गया था कि विहंग मार्ग का तात्पर्य मतलब सेवा तो बाप करते हैं ना, तो क्योंकि मनुष्य को परमात्मा से पुण्यात्मा बनाना तो एक शिव बाबा का काम है, तो इसमें विहंग मार्ग की सर्विस आई थी बात। तो विहंग मार्ग की सर्विस इसका अर्थ क्या है और कब की बात है विहंग मार्ग की सर्विस? विहंग कहा जाता है पक्षी को। विहंग हाँ जी। पक्षियों में तेज उड़ने वाले भी होते हैं, धीमी चाल उड़ने वाले भी होते हैं, ऊंची स्टेज में उड़ने वाले भी होते हैं, नीची स्टेज में उठने वाले भी होते हैं, छोटे ज्ञान योग के पंखों वाले भी होते हैं, बड़े ज्ञान योग के पंखों वाले भी होते हैं। उनमें सबसे बड़ा है हंस। जो हंस है वो बहुत बड़े बड़े पंखों वाला है और नीरछीर विवेकी है। मनुष्यों के द्वारा जो ज्ञान आता है वो है नीर, पानी, चाहे नदियां हो, चाहे तालाब हो, चाहे कुछ भी हो। और जो ज्ञान सागर के द्वारा आता है वो है मंथन करने योग्य, जहां से अमृत निकलता है। तो अमृत मंथन जो है वो सागर से होता है। जो ज्ञान सागर है वो ही हंस है। अव्वल नंबर नाम दे दिया है रामकृष्ण परमहंस। राम का नाम पहले, कृष्ण का नाम बाद में, क्योंकि कृष्ण वाली आत्मा सेकेंडरी है। जब बाप दादा कहा जाता है तो बाप पहले नंबर में और कृष्ण वाली आत्मा दूसरे नंबर में। तो वो परमहंस का पार्ट बजाने वाली आत्माएं हैं, बहुत ऊंची स्टेज में उड़ने वाली आत्माएं हैं। बहुत ऊंची स्टेज में उड़ेंगी तो सेवा भी कैसी करेंगी? है ऊंची स्टेज की सेवा करेंगी ना, तो बहुत ऊंची स्टेज की सेवा करेंगी तो पद भी ऊंचा पाती है। जो जितना ऊंची स्टेज की सेवा करेगा उतना ही पद उसना ऊंचा बनता है, तो उसे विहंग मार्ग की सेवा कहा जाता है। हाँ। The student is asking about there is a word Vihang Marg service in the Murlis. What does that mean? Baba is saying Vihang means a bird, the service that is done like a bird. So Baba is saying birds are of all kinds. There are some birds which fly very fast. There are some who have a slow speed. There are some who fly very low and there are some who fly very high. And then the birds are also of different kinds. Some have very small wings, some have got big wings. So Baba is saying the bird which has got the longest or the biggest wing is called the swan. Baba is saying swan has the speciality of separating milk from water. Whatever knowledge comes from the human beings is equal to water, and whatever knowledge comes from the ocean of knowledge is like the nectar. That is the water which that is the milk which you can churn. Like it is said, now the ocean is churned. The churning of the nectar takes place in the ocean. So that is the ocean of knowledge. And Baba is saying that the ocean of knowledge himself is the swan. This is why the name of the number one swan is Ramakrishna Paramhans. There was a person by this name. So Baba is saying even in the name of Ram comes first and then there is the name of Krishna. Just like in the word Bap Dada, the word Bap comes first and then there is Dada. Because Krishna is the secondary soul, the soul, the second number soul. And Baba is saying that it is these birds like Ramakrishna Paramhans who fly in a high stage. So those who fly in a high stage will do a high service, and when they do a high service, they will receive a high position. So the more the service you do, the higher the position you receive. बाबा, मैं कोई भी बात हो अंदर में छुपा के रह सकती हूँ, मुझे परेशान करता हूँ, मैं बोल देती हूँ, मैं नहीं देती हूँ कि किसी को दिल दुखाया, मैं निकाल देती हूँ। जब से मैं निकालती हूँ मुझे अंदर घूमते रहता है। मैं सोचती हूँ क्या ये बुरा बात है? मैं सोचती हूँ
मैं नहीं जानती हूँ, मुझे इससे मैं अंदर नहीं रख सकती हूँ, मैं निकाल देती हूँ, फिर मैं शांत हो जाता हूँ। बातें तो दो तरह की होती हैं, एक ही तो होती हैं पोशीदा बातें, अंदर अंदर रखी जाती हैं, बाहर किसी को हम नहीं बताते हैं। एक होती है बाहर दूसरों की देखी हुई सुनी हुई बातें, वो बाहरी बातें हैं। अब कौन सी बातें बताने में एक्सपर्ट हैं ये अपने को देखना है। बाहर की दुनिया की जो सुनी हुई बातें आई हैं, पर चिंतन जिसे कहा जाता है, वो हम फटाक से बोल देने में एक्सपर्ट हैं, या अंदर अंदर जो कुछ खमियां खराबियां अच्छाइयां बुराइयां वो बोल देने में एक्सपर्ट हैं। क्या होना चाहिए? समाना चाहिए। हैं? समाना चाहिए। पर चिंतन की बातें जो हैं वो समा लेना चाहिए। किसी का हमने पाप इन आंखों से देख लिया, हम बाबा के बच्चे हैं, बाबा को नहीं बताया, ने अंदर समा लिया, तो अच्छी बात है। बाबा को बताना चाहिए। है? बाबा को बताना। वो प्रदूषण फैलता रहेगा या समाप्त हो समा जाएगा? हैं? फैलता रहेगा, तो बताना अच्छा है। बाकी बाबा के अलावा दूसरों को बताना, इससे प्रदूषण बढ़ेगा या घटेगा? बढ़ेगा। तो ये भी हमें अपने अंदर देखना है कि जो बात मेरे अंदर आ जाती है वो मैं सारी बातें परचिंतन की या बाहरी दुनिया की देखी हुई व्यक्त बातें जो हम देखते हैं सुनते हैं, वो हम बाबा को ही बताते हैं या दूसरों को बताते रहते हैं? कचरा इधर उधर फैलाते तो नहीं रहते हैं। न अपना कचरा ले इधर उधर फैलाना है, न दूसरों का कचरा इधर उधर फैलाना है। अपना कचरा माने अपने अंदर की जो खराबियां हैं, कमजोरियां हैं, वो भी फैलाना नहीं है। बाहर फैलाना है तो अपने गुण व्यक्त कर सकते हैं। व्यक्त करना माने बोलने से नहीं, अपने वाइब्रेशन के द्वारा चारों ओर अपने गुण फैलाना, गुणों से सेवा करना और दूसरों को भी गुणों का वर्णन करना, ये अच्छी बात है। हाँ जी। Student is saying that she has got a habit of she can't keep anything in herself. She has got a habit of saying everything, whether it hurts somebody or whether it is pleasing to him. So is this bad or is it good? So Baba is saying there are things, there are some which we keep secret in ourselves. We keep it to ourselves, and there are some things which we hear and listen from the other people. So that is like the waste thoughts which comes from other people. So Baba is saying even in that you should judge yourself, you should check yourself what kind of things we share with others. Do we? There are two kinds of things. Like there is the garbage which is in us, our bad traits or bad qualities. That is the garbage in us, and that thing is not to be spread among others. And another thing is the weaknesses or the weaknesses which you see in others. That is also like garbage. So these are things which you shouldn't spread over here and there, because if you spread garbage, then that will lead to pollution. If you listen something from the others, if you see the waste things in the outside world, or if there is something bad in you, then you should tell it only to Baba. Then that is correct. And if you want to spread something, then you should spread your virtues. So how to spread your virtues? It is not by saying. You should not by speech. You can't spread it through speaking. It is through the vibrations. You should spread your good virtues among the people through your vibrations. Not only your good virtues, but also the good virtues of the other people. Baba, it was said that everything will be revealed. If one gives you the truth, Pratama, what is going to be revealed?
ना बाबा कहते हैं ना कि मना किसी की भी छुपी नहीं रहेगी, सबकी प्रत्यक्ष हो जाएगी। किसी की भी कोई भी बात छुपी नहीं रहेगी, सबकी प्रत्यक्ष हो जाएगी। तो जो पोता में देते हैं बाबा को, उनकी क्या बात प्रत्यक्ष होगी? वो तो पहले ही प्रत्यक्ष कर दिया, वो तो फैलती रहेगी इधर उधर। अगर दूसरों के सामने भी प्रत्यक्ष कर दिया तो, और बाबा को प्रत्यक्ष कर दिया तो बाबा को क्या पड़ी है? जो बात बाबा के सामने सच्चाई से बता दी गई, लिख करके दे दी गई, तो बाबा के पास तो रिकॉर्ड में आ गई। बाबा क्यों प्रत्यक्ष करेगा? बाबा के बच्चे हैं असली या नकली? असली बच्चों की बात क्यों इधर उधर फैलाएंगे? रावण के बच्चे हैं तो वो छुपाएंगे। Baba is saying that if you give your pota meal, it is like you are revealing it yourself. If you give your pota meal to the others, if you share it with others, then they will spread it all around. But if you give it to Baba, why will Baba spread it? If you give in writing to Baba, Baba won't spread it. It will just get recorded in Baba's records. Because if they are the true children of Baba, they will give their pota meal, so Baba won't spread it. But if they are Ravan's children, they won't give their pota meal. So Baba, what would be revealed? Because it was said that everything will be revealed. ना बाबा ने तो ऐसे कहा है ना कि मना सब कुछ प्रत्यक्ष हो जाएगा। हाँ? क्या प्रत्यक्ष होगा? मना जो बाबा के सामने प्रत्यक्ष हो गया वो तो हो ही गया ना। बाबा किसे कहा जाता है और शिव किसे कहा जाता है? सिर्फ शिव को प्रत्यक्ष करने वाली बात है या बाबा को प्रत्यक्ष करने वाली बात है? बाबा को प्रत्यक्ष करना है। शिव तो अंतर्यामी है, वो तो तीनों कालों को ऑलरेडी जानता है। उसको बताओ या ना बताओ, लिख करके देने वाली बात ही तब आती है जब साकार को बताना है। शिव को तो लिख करके देने की बात है ही नहीं, साकार को पता चलना चाहिए। तो जो साकार को पता चल गया वो तो जैसे हमने संसार में डाल दिया, वो संसार का बीज है, सारी मनुष्य सृष्टि का बीज है। बीज के अंदर में वो बात आ गई। जो बाप के सच्चे बच्चे हैं वो सच्चे बच्चे बन गए। जो सच्चे बच्चे बन गए तो बीज बन गए। जो बीज बन गए बाप के साथ, उनसे तो सारा संसार पैदा होगा, नहीं होगा? उनसे सारा संसार जन्म लेने वाला है। और जो सारा संसार जन्म लेगा तो जो बीज के अंदर खामी है, बीज के अंदर गुण है, वो सारे संसार में फैल गए कि नहीं फैल गए? नहीं फैल गए? अरे समझ में आई नहीं ये बात? Baba is saying like if you have given the pota meal to Baba, then it is like you have revealed it already in front of Baba. And who is Baba? Do you reveal it in front of the point, the incorporeal, or is it in front of the corporeal one? Because giving in writing is to the corporeal one, because the incorporeal one is antaryami, like he knows the inner thoughts and feelings of everyone. He knows all the three aspects of time. So it is not about giving in writing to him. It is about giving in writing to the corporeal one. And he is the seed of the human world tree. So it is like you are giving it to the seed. And those who give it to the father, they become the true children of the father. So when they become true children, they are like the seed children. So when they are the seed, then the whole world will be born through the seed. And when the whole world is born through the seed, then whatever good or bad traits or whatever good and bad virtues there are in the seed will spread in the whole world. आप काफी दिनों से इंतजार करते हैं कि बाबा से कब मिलेगा, कब मिलेगा। आज बाबा से मिल गया तो सफल हो गया। कौन बोला? चेहरा ही नहीं दिखाई पड़ रहा है। हाँ 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 हाँ। अब सब बात भुला चाहिए बाबा। क्या 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 इंतजार कर रही थी आपसे, हैं? इंतजार कर रही थी आपसे मिलने के लिए, और मिल गया तो सफल हो गया। उसका मिलना सफल हो गया बाबा से। तो सफलता की खुशी में सदैव खुशी ही खुश बने रहिए। हाँ ये बोलती है इसका जो हल्कापन महसूस करते हैं। हाँ जी, हाँ जी, भूल जाते हैं। हाँ जी, अच्छा है। ये भूल जाता है। संगम युग में हल्का रहना अच्छा है या भारी होना अच्छा है? नहीं तो सब बात भूल जाइए ना। है भूल जाते हैं। इसका यादगार के मतलब बोल रहे हैं। याददाश्त की बात बोल रही है। तो खुशी आनी चाहिए ना, अच्छी बात है। जटिल भेद खुल गया मधुबनी मुरलिया का।
है। जो बातें स्पष्ट नहीं हुई थी वो ब्रह्मा बाबा की जो मुरली है शिव बाबा ने चलाई माउंट आबू से, वो सारी बातें क्लियर हो गई। अगर क्लियर हो गई तो खुशी की बात है ना, कुछ अंदर रह तो नहीं गया है, कुछ नहीं रह गया। और बाबा जैसे 2018 से महाशिवरात्रि हम कहते हैं, महाशिवरात्रि उसमें जैसे धर्मराज का पाठ भी होता है, राइट? बाबा का धर्मराज का पाठ भी शुरू होगा, तो मुझे वही जानना है धर्मराज के पाठ, क्योंकि पक्के पक्के सूर्यवंशी जैसे आश्रतन से प्रत्यक्ष होते जाएंगे, फिर बाकी के जो है धीरे धीरे जो प्रत्यक्ष होते जाएंगे, सजाएं जिसको जो मिलनी होगी, उसके बाद और कहते 2028 तक जैसे 9 लाख सितारे आसमान में चमकेंगे, तो धर्मराज और सुवर्ण संगम युग भी हम कहते हैं। तो धर्मराज का पाठ उसमें कब तक रहता है? और अंत तक रहता है, 2036 तक भी रहता है। जब तक इस दुनिया में दुष्ट निवास करते हैं, दुष्ट जिंदा रहेंगे, तब तक धर्मराज का पाठ चलता ही रहेगा। अब वो दुष्टों की दुनिया चाहे बीज रूप आत्माओं में हो, चाहे 500-700 करोड़ की आत्माओं में हो। Student is asking, like after 2018, Mahashivratri will take place, so there will also be the part of Dharmaraj. So when will Dharmaraj be playing his role? By saying Dharmaraj will be playing his role till the end, even till 2036. As long as there are the wicked people in this world, Dharmaraj will play his role. This is also applicable to the seed form world of. This is also applicable to the seed form world, and it is also applicable to the physical world of 5 to 7 billion souls. I've come to the knowledge now when it is in Tamapratan stage. Does that mean I've done Tamapratan devotion? इनका पूछना है कि ये ज्ञान में अभी तमोप्रधान पीरियड में आए हैं, तो क्या इन्होंने तमोप्रधान भक्ति की है? अभी तो बताया, जो सार्वजनिक ड्रामा का शूटिंग है वो सबके लिए है इकट्ठा, और जो इंडिविजुअल है उसका हिसाब अलग है। जैसे परमधाम से आत्माएं उतरती हैं, तो जब उतरती हैं तब सात्विक स्टेज में है या तामसी स्टेज में है? सात्विक स्टेज में है। फिर धीरे धीरे वो उतनी अवस्था में नीचे गिर जाती है। जितना उनका टाइम यहाँ रंगमंच पर पार्ट बजाना है, ऐसे ही शूटिंग पीरियड में, शूटिंग पीरियड में जो आत्माएं अंत में आ रही हैं उनकी भी 4 अवस्थाएं, और जो अंत में आ रही हैं, अभी आ रही हैं एडवांस में खास करके, उनकी 4 अवस्थाओं का कनेक्शन यज्ञ के आदि से जुड़ा हुआ है। क्या कहा? यज्ञ के आदि में वो आई थी तब दीदी दादी दादाओं से आगे बढ़ करके यहां आ गई। आगे पहले ही वो सूर्यवंशी की लिस्ट में आ चुकी है। ज्ञान सूर्य को सपोर्ट किया था उन्होंने, चंद्रवंशियों को, इस्लाम वंशियों को, बौद्ध वंशियों को, जो ब्रह्मा की गोद में खेले हैं, अभी भी खेल रहे हैं, उनको सपोर्ट नहीं किया। इसलिए वो आत्माएं अभी लास्ट में भी आई हैं, या लक्ष्मी की तरह लास्ट मोमेंट में आने वाली हैं, तो भी श्रेष्ठ आत्माएं हो सकती हैं, श्रेष्ठ पार्ट बजाने वाली हो सकती हैं। उनको भी 4 अवस्थाओं से जरूर गुजरना पड़े। Baba is saying what you asked is about the general shooting period, which is meant for the people in general, but the individual shooting period for every soul is different, and that starts ever since a person comes in knowledge. So Baba is saying, like, when the soul comes from the supreme abode to this world, he is initially sattvic, and then for whatever time period he has to play a part on this world drama wheel, he'll pass through the 4 stages in that much of time period. So even if the souls come in the Tamopradhan period, they have to pass through all the 4 stages.
Like Baba is saying that those who come, especially in the advanced knowledge now, have got their connection with the part in the beginning of the yajna. Like they were also present in the beginning of the yajna. This is why now they have crossed all the Didi Dadis and they have come in the advanced knowledge. Because in the beginning of the yajna, they had supported the son of knowledge. They didn't support the Chandravanshis. And the Chandravanshis are those who were sustained in the lap of Brahma Baba. So they are the Suryavanshi souls who have come now. And Baba is saying that even if they come in the Tamopradhan period, they can play an elevated part. Like Baba gave the example of Lakshmi. When we are not able to forgive ourselves for something we have done in this birth, in the Lakshmi birth, even if we have given it in the bottom male, does it mean, well, why are we not able to forgive ourselves? And is it a lack of faith or? माता जी का प्रश्न है कि जैसे हमसे कुछ ऐसे कार्य हो जाते हैं जिनकी वजह से हम अपने आप को क्षमा नहीं कर पाते, कभी हम बाबा को पोतामेल में लिख करके भी देते हैं तो भी उन बातों को हम भूल नहीं पाते, हम अपने आप को क्षमा नहीं कर पाते, तो इसका कारण क्या है? निश्चय की कमी, कुछ छुपा दिया है। You have hidden it to some extent. You have hidden it to some extent. You have hidden it, kept it in secret. You're still hiding to some extent. बाबा, जैसे अंत में लक्ष्मी नारायण के द्वारा जैसे सब लोग देख के कहेंगे कि नहीं हमारा बाबा आ गया, वो लक्ष्मी नहीं, ओके, जस्ट नारायण, वही मेरा क्वेश्चन था, क्योंकि मान्यता सब में लॉर्ड कृष्ण कहते हैं, जैसे लक्ष्मी का नाम नहीं है, एडम और ईव कहते हैं, और लेकिन लक्ष्मी का नहीं होता है, तो मुझे वही वो कोई लक्ष्मी कहो उसको ईव कहो, बात तो एक ही है। हाँ जी, हाँ नहीं, वही तो मुझे क्योंकि आई थिंक जैसे लक्ष्मी नारायण के मैं पढ़ा था जो कोर्स में बाबा ने लिखा था कि जैसे अंत में वो संपूर्ण हो जाते हैं, तो बाबा तो तभी शिव बाबा तो नहीं रहता, क्योंकि ये तो संपूर्ण रचना है उनकी, उनको देख के जब बाप का बच्चा तैयार हो गया, दुकान संभालने लायक हो गया, अच्छे से दुकान संभाल रख सकता है, तो बाप को घर में बैठना अच्छा है, वानप्रस्थी बन जाना अच्छा है, या बच्चों के ऊपर कंट्रोल करते रहे वो अच्छा है? गीता में तो यही कहा है, मम वर्तमान वर्तन्ते मनुष्या पार्थ सर्वस्य। मैं जिस रास्ते पर चलता हूँ सारी दुनिया मेरा अनुगमन करती है। तो वानप्रस्थ में जाने की जो परंपरा है वो कौन सी आत्मा शुरू करती है? अच्छी परंपरा है या खराब परंपरा है? अच्छी। तो किसने शुरू की? ये वानप्रस्थ में जाने की परंपरा पहले किस आत्मा ने शुरू की? अरे शिव ने शुरू की। तो शिव को ही सारी दुनिया नंबरवार जो है अनुगमन करती है। शिव जो है वो बच्चों को आप समान बनाने आया है, टीचर पढ़ाने आया है, और टीचर का एक स्टूडेंट फर्स्ट क्लास पास हो जाता है तो उसने पढ़ाई पूरी पढ़ाई या अधूरी पढ़ाई है? पूरी पढ़ाई। तो पूरी पढ़ाई पढ़ने में जो बच्चा बाप समान बनता है, तो फिर बाप को घर बैठना अच्छा है या बच्चे के ऊपर कंट्रोल करते रहना अच्छा है? घर में बैठता है, परमधाम में बैठता है, पूरा ही बैठ जाता है या बीच बीच में बच्चा घर भी आता है? दुकान छोड़ के घर आता है कि नहीं? बाप से मिलता है कि नहीं? तो बाप से मिलन होता है, जो कुछ पूछना करना है, जो कुछ डायरेक्शंस लेने हैं, जो कुछ सलाह लेना है, वो सलाह भी लेता है। तो बाबा जैसे
ईव की कहते हैं ना, एडम ईव, आदिनाथ आदिनाथनी, तो हम ईव को जैसे जगदम्बा ब्रह्मा बाबा की माँ का पाठ जैसे कहते हैं, वो दुनिया में मान्यता है। किसकी? लक्ष्मी की। हाँ मान्यता है। हाँ तो लेकिन उनकी तो उनकी तो प्रत्यक्ष, जैसे कहते हैं ना, मंदिर नहीं होते ब्रह्मा। किसके नहीं मंदिर होते? किसके मंदिर नहीं होते? ब्रह्मा के। अरे ब्रह्मा कोई नारायण है? ब्रह्मा पतित का नाम है या पावन नारायण का नाम है? अरे ब्रह्मा किसका नाम है? अरे बोलो ना। पतित का नाम है, उसकी तो बात ही नहीं। सिद्धि को प्राप्त करने वाले, सफलता को प्राप्त करने वाले की दुनिया पूजा करती है, मान्यता देती है। जिसने कोई सिद्धि प्राप्त नहीं की उसकी मान्यता नहीं देती है। और Student is asking about the praise about Lord Krishna. Like everyone, whoever sees Narayan, whoever sees Lakshmi and Narayan, they will say that yes, our father has come. Baba is saying that is not about Lakshmi, only about Narayan. Whoever sees him will say that the father has come. Then, like Baba is speaking about, Baba is saying that when the father, Baba is giving a worldly example, when a father, when his child becomes capable, what does the father do? He entrusts his shop to the son, and then he retires. So this tradition of retirement is a good tradition, and that is led by Shiv. Because when he comes to this world, then he comes with the aim to make the son equal to himself. So when the son becomes equal to himself, then he gives him the shop and he retires. Like Baba has said that when Shiv comes and when he teaches as a teacher, then even if there is one student who passes 100%, then it is said that the teacher taught the complete study. So similarly, when the son becomes perfect enough, when he becomes capable, the father gives the shop and he retires. So this tradition is laid by Shiv. And then Baba is speaking about Brahma Baba, that there are no temples for Brahma. So Baba is saying that there are no temples for Brahma because he did not accomplish his task. The one who becomes successful in his work, the world respects him, and the one who doesn't become successful is not respected in the world. Then Baba, when coming back to the topic of retiring, Baba is saying that when he retires and when he gives the shop to his son, then does the son always stay at the shop or does he even come home sometimes to seek advice from his father to take directions? Baba is saying that the son also comes home to take directions from the father. मेरा सिर बहुत दुखता है। सिर बहुत दर्द करता है। उसका सर दर्द होता है, खाली खाली महसूस करते हैं। बहुत दर्द सहन नहीं जाएगा। हल्का रहता है? नहीं, खाली रहता है, बहुत दर्द होता है इसका। अभी कह रहे थे हल्का सिर रहता है, अभी कह रहे सर दर्द होता है। कभी हल्का, कभी कभी होता है। बाबा की याद में रहो तो हल्का रहेगा, आत्मिक स्थिति में रहेंगे तो हल्कापन रहेगा, देवान में रहेंगे तो भारी हो जाएगा। नहीं, कभी बहुत दर्द करेगा, वही तो। सहन नहीं जाएगा। हाँ, तो कभी कभी देवान में आते हैं तो दर्द ज्यादा अनुभव होता है, आत्मिक स्थिति में रहते हैं तो दर्द हल्का अनुभव होता है या नहीं अनुभव होता है। और sharing her personal, like she is telling about herself that her head aches a lot. So Baba is saying that when you feel light, when you're in the soul conscious stage, you feel light, and when you're in the body conscious stage, you feel heavy. So she's saying that my head pains a lot. So Baba is saying that if you are body conscious, you'll feel the pain more, and if you're in the soul conscious stage, you will either feel it a little or you won't feel it at all. मुझे अभी थोड़ा क्लैरिफिकेशन और चाहिए। जैसे आपने नो ठीक है, मुझे पता चला ब्रह्मा का पाठ, लेकिन वो जैसे आपने कहा लक्ष्मी ईव कैसे हो गई, वो मुझे नहीं, लक्ष्मी कहो, आपने कहा ईव कहो, वो क्योंकि ईव और लक्ष्मी पुरुषार्थ पूरा करेगी तभी तो लक्ष्मी हो जाएगी, कि नहीं हो जाएगी?
हाँ लेकिन अधूरा पुरुषार्थ है तो लक्ष्मी है। नहीं। लक्ष्मी, मेरे को लक्ष्य प्राप्त हुआ, लक्ष्य प्राप्त हुआ तभी तो लक्ष्मी है। नारायण मिला नहीं, लक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ? The student is asking, how can Lakshmi be called Eve? Baba is saying that she becomes Lakshmi only when she becomes complete. As long as she is incomplete in making Purusharth, she cannot be called Lakshmi. So then Baba is explaining the word Lakshmi. Laksh and me. Laksh means aim. So Baba is saying, I have received the aim. So the aim will be received, she'll receive the aim or she'll achieve the aim only when she finds Narayan. बाबा जो बच्चे नए आए हैं अभी, उनसे मुलाकात है जी। जो बच्चे भी नए आए हैं उनसे अभी मुलाकात हुई नहीं, उनका परिचय करवाना चाहते हैं। हाँ परिचय करा दीजिए। वो सामने बैठे अनीता माता बैठी हुई हैं, ये नीचे भी बैठी है। हाँ सुभावती माता, हाँ और युगल आए हैं, जयेंद्र भाई जो प्रश्न कर रहे थे उनकी युगल है और इनका पुत्र भी आया है। ये अपने युगल से संदेश इन्होंने लिया। पहले युगल निकले, युगल को यूके के आनंद भाई लेकर आए थे। हाँ। तो उन्होंने युगल को संदेश दिया और फिर अपने पुत्र को संदेश दिया, तो तीनों निकल आए बाबा। हाँ जी, हाँ जी। पहले इनके युगल बहुत समय से बिके हुए थे। हाँ जी। अब निकल आए हैं। हाँ जी। और फिर और ये है कोबिला माता, ये तमिल बोलती है। हाँ जी, हाँ जी। और हिंदी उतना बोल नहीं पाती, अब सीख रही है, कोशिश कर रही है सीखने को। हाँ जी। ये बहुत डर रही थी निकलने के लिए बाबा। क्यों? उसको डर लग रहा था बेसिक वालों से। हाँ। बेसिक वालों से डर लगा? हाँ, क्योंकि लोग बहुत दबाव डालते हैं, इससे डर रही थी। डरते डरते छुपते छुपाते अभी निकल कर आई है। गुरुओं के गहरे प्रभाव में आ जाते हैं ना तो डरते हैं। और ये है धनेश्वरी माता। धनेश्वरी माता इधर इधर, हाँ इधर कुंवारी है। हाँ। गल नहीं निकले हैं, ये भी बहुत समय से बेसिक में थी। रूपावती माता के साथ निकली थी। हाँ जी। रूपावती माता सामने बैठी है, उसके साथ निकली थी, लेकिन साथ भर्ती करने नहीं आ पाई, अब आई है। अच्छा अच्छा। तो भर्ती पूरी हो गई। हाँ जी। संतुष्ट है। और भाई लोग हैं, वो जयेंद्र भाई, हाथ उठाइए। हाँ जी, हाँ जी। ये युगल परिवार जो निकले हैं, हाँ। वो हैं सत्य प्रकाश भाई। हाँ जी। वो कुमार हैं, वो भी बहुत समय से निकले हुए थे, वे भी बहुत डर रहे थे निकलने के लिए। डरते डरते निकले हैं, उन पर बहुत इंक्वायरी, अच्छी तरह से आखिरी जन्म में दबाव डाल दिया गुरुओं ने। इंक्वायरी चल रही है उनके ऊपर, फोन बतलाने को, एड्रेस देने को, कहाँ जा रहे हैं। हाँ, अभी ज्ञान का बल आएगा तो मुकाबला करेंगे। ज्ञान को भी बल कहा जाता है, ज्ञान बल। हाँ। और गिरिजेंद्र भाई, वीरेंद्र भाई के साथ पुत्र है, कुमार है वो भी। हाँ। और बाकी सब पुरानी माताएं आई हैं। महांती माता हाथ उठाइए। अच्छा अच्छा। हाँ जी, हाँ जी। और मानती माता हाथ उठाइए। हाँ जी। दुबावती माता। हाँ। और मानती रानी माता, मीरा बहन, सरस्वती बहन। हाँ जी। हाँ जी। मैं कुछ पूछ रही हूँ, प्रश्न नहीं है, पूछ रही हूँ, बता रही हूँ माना। हाँ। हाँ, क्या हुआ था ना, जब उस वक्त आए थे तो आपने बोला था कि आपको बेसिक जाना है क्योंकि वो लोग परिवार है। बेसिक जाना पड़ेगा मुझे क्योंकि वे लोग परिवार है, एक एक करके निकालना होगा। हाँ जी। तो बाबा जब हम गई तो एक एक के काट में घूम करना शुरू हो गया। तो सेंटर में सभी लोगों को माना पता चल गया, इंचार्ज लोग को, सभी को। तो और ये भी यहाँ से जब भक्ति करके आई तो इन पर भी, इनको तो निकाला गया वहाँ से। तो किसी ने मुझे फोन करके बोला, वो जब हम उससे ये ज्ञान की बातें बोली तो उसे अच्छा लगा। कितने लोग निकलने वाले थे,
लेकिन इंचार्ज ने सभी के पैर में जंजीर डाल दिया, वे लोग डर गए। तो बाबा और मुझे और सीढ़ी के चित्र में जंजीरें देखी है ना रावण की। हाँ जी। और मैं भी बाबा उतना पक्की तो नहीं थी, मुझे ज्ञान और लेना था। भक्ति करके तो सारा प्राप्ति तो नहीं हो जाता ना, मुकाबला करने के लिए तो ज्ञान भी लेना पड़ता है। तो मैं तो माता जी के पास चली जाती थी और वे लोग ढूंढते थे कि मैं कहाँ जा रही हूँ। तो मुझे किसी ने फोन करके बोला कि अटेंशन रहे ना, कि वे लोग जान गए हैं कि आपने ऐसा किया। तो बाबा वे लोग तो मुझे निकाले नहीं, मैंने जाना ही बंद कर दिया। तो मैंने बोला, बाबा ने बोला था मुझे जाने को और मैं छोड़ दिया, तो मुझे गिल्टी फील हो रही थी बाबा। क्या? हाँ, माता जी को तो निकाल दिया, तो ये तो पांडव बन गए। जिनको धक्का मिलता है वो हो गए पांडव। अच्छा, जिनको धक्का मिलता है वो हो गए विभीषण, राम के सहयोगी, और आप डरते रहे। नहीं डरे नहीं बाबा, तो वे लोग फोन किया और वे लोग की स्वभाव कुछ ऐसा है। लेकिन बाबा, लेकिन मैंने कुछ प्रश्न लिख के इंचार्ज के हाथ में भेजी थी ताकि वो बुलाए, मुझसे बात करे। कोई भी मुझे दिखता है बेसिक तो मैं उन लोगों से बोलती हूँ, ऐसे ऐसे ज्ञान की बातें सुनाती हूँ, डरती नहीं हूँ। तो मैं क्या हो गई बाबा? आप चुपचाप क्यों बैठ गए फिर? तो कैसे जाती बाबा उस समय? क्यों? में थोड़ा प्रॉब्लम। वो हमारे ब्राह्मण परिवार के सदस्य नहीं है, बीके वाले। तो करूंगी ना बाबा सेवा, किसने? हाँ, तो करना चाहिए। हाँ, भले घर में न हो। ये आकांक्षा क्यों करना चाहिए कि वो हमको बुलाएं, निमंत्रण दें, तब हम जाएंगे? क्योंकि उसे पता चल गया था कि मैं ही चलने दो। शंकर पार्टी बोल। और उनके बोलने से क्या हो जाता है? उनके बोलने से कुछ शंकर पार्टी या दुर्योधन पार्टी या दुशासन पार्टी हो जाती है? बाबा अब तो 3 बरस हो गए, अब कैसे जा सकती हूँ? है? अब तो 3 बरस हो गई, कैसे जा सकती हूँ? हाँ। और उस समय बाबा मैं प्रॉब्लम में थी। मुझे माता जी ने बताई थी ना कि मुझे कोई सहयोग नहीं करता है घर पे, तो पैसे की बड़ी प्रॉब्लम थी ना उस समय और बीमार थी। तो कैसे आना जाना, और मुझे तो वहाँ पे जाना था क्योंकि मुझे और ज्ञान लेना था ना, तो इसी कारण मैंने जाना ही बंद कर दिया उधर। गलती हो गई। तो क्या करें बाबा? या तो प्रत्यक्ष हो जाना चाहिए, जैसे माता जी पांडव बन गई, उन्होंने धक्का दे दिया, ये पांडव बन गई। हाँ, उन्होंने धक्का दे दिया, ये विभीषण बन गई। क्या मैं फिर से जाऊं ताकि वे लोग मुझे नहीं? अभी आप तो चुपचाप बैठे हुए हैं। नहीं बाबा, किसी न किसी को सुनाती ही रहती हूँ। सुनाते रहते हैं, लेकिन गुप्त निकलती हूँ। मैं जानती हूँ वे जैसे हमारे एक जगह में बाजार भी है और सेंटर भी है सब्जियों का, तो मैं उधर जाती हूँ तो लोग मुझे दिखता है तो मैं उसे सुनाती हूँ। जैसे और जगह जाती हूँ। हाँ, नान बीके को सुनाते रहते हैं ना? हाँ, बीके लोगों को सुनाते हैं। हाँ, तो कोई निकलते हैं? सुन तो सब रहे हैं, लेकिन इंचार्ज से वो जो मर चुके हैं बीके से, उनको सुनाते रहते हैं, या जो जिंदा हैं उनको सुनाते रहते हैं? बीके में जिंदा है कैसे? ये सब बीके में, ये सब बीके ही निकले हैं बाबा। तो अच्छी बात है ना। आप कम से कम एक परिवार में है ना। अभी भट्टी कर ली तो 2 परिवार के हो गए। मैंने भक्ति तो उस समय करती थी बाबा, तो दोबारा बार आई हूँ आपसे मिलने। अच्छा, दोबारा आए, मिलना तो अच्छी बात है ना। हाँ जी। यही बाबा। बाबा, ये माता जी का परिचय देना चाहता हूँ। ये माता जी मलेशिया से आई हुई है। माता जी का नाम मोटरयामा चंद्रा माता जी। हाँ। 10 साल से बीके में चल रही थी। हाँ। 6 महीने के पहले माता जी का परिचय मिला एडवांस पार्टी का भाई से, फेसबुक से। हाँ, फिर एडवांस पे आए, भर्ती कर दी। हाँ। अच्छा, ठीक है। खुद भी आए, परिवार को भी लाए? परिवार को ला रहे हैं। हाँ जी। और दूसरा आत्मा को बारे में। हाँ जी। बाबा मलेशिया को आएंगे हैं? बाबा मलेशिया को आएंगे। बाबा मलेशिया आएंगे क्या? हाँ,
जहां जहां मिनी मधुबन बनावेंगे, अव्यक्त बाप दादा ने तो बोला है, जहां जहां मिनी मधुबन बनावेंगे वहां वहां बाप दादा आवेंगे। और ये बात भी खास विदेशियों के लिए बोली है। आप भी भारत के विदेशी हैं, दक्षिण भारत में रहने वाले। बाप भी विदेशी बनकर आया हुआ है, घबराइए नहीं। बाबा सिर्फ दक्षिण भारत विदेशी है या मॉरिशस किस लिस्ट में आएगा? बहुत गहरा विदेशी है। वहाँ का क्या प्रोग्राम है बाबा? हाँ जी, जो दक्षिण भारत के विदेशी निकलते हैं तो थोड़ी थोड़ी प्रत्यक्षता होती है संसार में। जब गहरे विदेशी निकलेंगे ना, रात्रि के 12 बजे सूर्य कहाँ चला जाता है? इंडिया में या विदेश में? हैं? विदेश में चला जाता है। तो जब वहां प्रत्यक्ष होता है तो कौन प्रत्यक्ष करते हैं? हैं? जो गहरे प्रदेशी हैं वो प्रत्यक्ष करते हैं। बाबा को ले आए थे, அடுத்த வாட்டி வரும்போது நான் हिंदी பேசுவேன்। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। मैं अभी बाबा का बच्चा बन गया हूँ, अगला बार जब आऊंगा तो हिंदी बात। हाँ जी, हाँ जी। बाबा सूर्यवंशी और गहराई से प्रत्यक्ष करेंगे। डायरेक्ट बात करिए। बाप भी तो विदेशी बनकर आया है। और Mataji is asking about, she's from Malaysia, so she's asking when will Baba go to Malaysia? Baba is saying it is especially said for the foreigners that wherever you open mini Madhubans, Bapdada will go there. And Baba is saying that you belong to South India, so South India is also the foreign country of India. It is the foreign land of India. So when the foreigners from South India come, then a little bit of revelation takes place. But when the deep foreigners, that is the actual foreigners, when they come, then there will be the revelation. Like Baba says na, when it is 12 o'clock at night, then where does the sun go? The sun goes to the foreign countries. So it is they who recognize him first and they will reveal him. बाबा मिनी मधुबन की रूपरेखा कैसी होनी चाहिए? यहाँ की तो अलग बात है, और विदेश पे मधुबन मिनी मधुबन की रूपरेखा कैसी होनी चाहिए? माना बाबा ने तो रूपरेखा बता दी। मिनी मधुबन नाम कहाँ से पड़ा? पहले तो मधुबन नाम था, वो मिनी मधुबन नाम कहाँ से पड़ा? जब एडवांस पार्टी बनी तो मिनी मधुबन, पहला मिनी मधुबन कौन सा हुआ है? हाँ, तो वैसा ही होना चाहिए। कंपनी में भी तो विदेशियों ने जब आना शुरू किया तभी तो प्रत्यक्षता हुई। इंडियंस ने तो आना ही नहीं शुरू किया। अभी भी भारत के जो विदेशी हैं वो ही ज्यादा तादाद में आ रहे हैं। इंडियंस तो अभी भी बहुत कम है।